Here comes the World Heavyweight Champion, the visionary Seth freaking Rollins, ready to defend his title tonight in a big fight. But now he's enjoying his entrance as fans are singing, "Oh, here comes CM Punk." He can't let Seth Rollins defend his title tonight. The best in the world is here, and he is smashing the visionary. Oh, CM Punk chants going on. And now Punk is beating the hell out of Seth Rollins, who cashed in his Money in the Bank contract on CM Punk at SummerSlam. Oh, LA Knight is here. He's trying to stop Punk. And Punk is not. Oh! Spear by Braun Breaker, the dog. And now he's barking. But LA Knight is trying to stop Breaker, but Bronson Reed is also here and he attacks LA Knight. Breaker and Reed smashing CM Punk and LA Knight. Oh, elbow drop by Reed. Incredible action on Monday Night Raw. Braun Breaker, the dog. Spear to LA Knight. Yeah. The dog is barking. Look at Seth Rollins telling Bronson Reed as he looks for a stomp on Punk. Damn! A stomp by the visionary. Seth Rollins stands tall one more time against CM Punk. Oh, here comes the Tribal Chief 1. A Superman punch by Roman Reigns to Bronson Reed. And now Reigns sets his sight on Braun Breaker, the dog. And he smashes the dog into the steel steps. Reigns now stalking Seth freaking Rollins, his biggest enemy in WWE right now. Roman Reigns is now ready to beat the hell out of Seth Rollins. But Rollins ran away. Fans are booing Seth Rollins as he ran away like a coward. Oh, Braun Breaker tried to sneak attack Roman Reigns, but Reigns was ready and he is smashing Bronson Reed also. Tribal Chief, oh, it's a stomp out of nowhere from Seth Rollins. The dirty work of the visionary continues. And now Rollins smashing Roman Reigns. Look at Roman Reigns in very bad situation. Braun Breaker spears him. Tsunami number 1 to Reigns. Bronson Reed is definitely not done yet, and under Tsunami. Rollins telling Reed to do the same thing again. One more time. Bronson Reed is looking to do Tsunami. And just like that, the Vision stands tall over Roman Reigns, CM Punk and LA Knight, the World Heavyweight Champion, Seth freaking Rollins. Oh, look at this. CM Punk and Gunther. In tough competition for world title. Here we go.
Punk is slapping Gunther. Oh, big boot to CM Punk. The best in the world is stunned. A chop by Gunther. The power of Gunther is on different level. Again a chop. Punk hangs on but it's a big boot. And now the best in the world is down. Absolute madness. Chaos. Another chop by Gunther. Oh, punch this time. Oh, Punk replies with a kicks. Oh, but a chop again. And now Punk picks Gunther up, but Gunther counters. Oh, spine buster. And now Punk is looking for a sharpshooter, but Gunther counters. Chop again. The ring general is in complete control. Body slam. And now Gunther with the sharpshooter of his own to the best in the world, and now showing his body, his physique. And now again the chops exchange between these two. Oh, again a chop. Close line. Do it again. Oh, again. Oh, chop. Punk with a kick to the face. A neck breaker by the best in the world. CM Punk gaining the momentum. Oh, Gunther says nope. Power bomb by the ring general. Kick out by the best in the world. A new strike this time. Connects very well. Punk, bulldog, cover. Gunther powers out it too. How the hell CM Punk can think like this? Oh, GTS countered. Power bomb by Gunther. Telling Punk to back on his feet. Punk is back. Shotgun drop kick by Gunther to Punk. And now ring general with power bomb again. Kick out again by Punk. CM Punk. Oh! Incredible action, but look at Gunther and his bloody face. Punk is targeting the face of Gunther, which is already covered with blood. It looks like Gunther took a blood bath and an elbow drop from the best in the world. CM Punk is ready to end Gunther. Oh, Gunther counters into the sleeper hole, locked in. But Punk fights back. GTS to Gunther. Look at Gunther. He is in complete shock and no control. Punk is looking to repeat the GTS one more time. Gunther is down, covered by the best in the world. And CM Punk wins the match. CM Punk is your new World Heavyweight Champion. Oh no! Seth Rollins is here and he is cashing in his Money in the Bank briefcase on CM Punk. Just few minutes ago, CM Punk defeated Gunther. And now Rollins
smashes Punk with a briefcase. Face first and again and again. The hatred between these two. Oh, Seth Rollins cashed in with a stomp. And Seth Rollins pins CM Punk. The Visionary is your new World Heavyweight Champion. Can you believe it? क्या सेथ रॉलिंस को हराकर रोमन रेंस बनने वाले हैं नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन? आखिर क्या है मामला और कब होगा रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस के बीच एक खतरनाक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच? जानेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। जैसा कि रोमन रेंस की राइवलरी अब तक सेथ रॉलिंस और उनकी फैक्शन द विजन के साथ में खत्म नहीं हुई है। बीते मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हमने देखा कि कैसे द विजन ने एक बार फिर रोमन रेंस को पीट डाला। समर स्लैम में हमने देखा था कि कैसे रोमन रेंस एंड जे ऊसो ने मिलकर ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉनसन रीड को बुरी तरह से पेल दिया और पेल कर हरा दिया। लेकिन उसके बाद मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में जब सेथ रॉलिंस ने अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एले नाइट के खिलाफ डिफेंड की, बीच मैच में सीएम पंक ने आके सेथ रॉलिंस पे अटैक कर दिया, जिसके बाद सीएम पंक की पिटाई कर डाली ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉनसन रीड ने एलए नाइट को भी पेल डाला। फिर रोमन रेंस की एंट्री होती है जब सेथ रॉलिंस और उसके साथी मिलकर एले नाइट एंड सीएम पंक को तबाह कर डालते हैं। तो रोमन रेंस आता है और रोमन रेंस पीटने लगते हैं ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉनसन रीड को, लेकिन सेथ रॉलिंस फिर से दोबारा धोखेबाजी करता है रोमन रेंस के साथ में, उन्हें स्टॉम्प मारता है आउट ऑफ नोवेयर और रोमन रेंस का हाल हो जाता है बेहाल। ओटीसी रोमन रेंस हो जाते हैं हक्के बक्के, उनकी हालत खराब हो जाती है। जिसके बाद दोस्तों सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को भी अपना शिकार बनाता है, द विजन बनाती है ओटीसी को अपना शिकार। रोमन रेंस के पिटाई हो जाती है जब ब्रॉन ब्रेकर उन्हें मारता है कि स्पीयर, ब्रॉनसन रीड मारता है एक के बाद एक 3 सुनामी, और इस तरह से रोमन रेंस दोबारा दर्द से कराहने लगते हैं। सुनामी पड़ जाती है ओटीसी को और रोमन रेंस का हाल फिर से बेहाल हो जाता है। तो दोस्तों अब रोमन रेंस आगे क्या करने वाले हैं? तो क्लैश इन पेरिस में रोमन रेंस का एक मैच होने वाला है। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि एक मल्टी पर्सन मैच हो सकता है। पहले हम समझ रहे थे, मान रहे थे कि रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर हो सकता है, फिर रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉनसन रीड हो सकता है, क्योंकि ब्रॉनसन रीड लगातार रोमन रेंस के जूते चुराते आ रहा है। तो हमें ऐसा लग रहा था कि कोई सिंगल्स मैच होगा रोमन रेंस का, क्योंकि रेसलमेनिया 40 के बाद से ही आप देखो तो रोमन रेंस के सिंगल्स मैचेस हुए ही नहीं है। सारे टैग टीम मैचेस हुए हैं, सारे मल्टी पर्सन मैचेस हुए हैं। रेसलमेनिया 41 में भी रोमन रेंस का ट्रिपल थ्रेट मैच हुआ, सिंगल्स मैच नहीं हुआ। तो हर कोई देखना चाहता है रोमन रेंस का सिंगल्स मैच, लेकिन वो मैच तो हो ही नहीं रहा है। तो वो मैच तो होना चाहिए ना मेरे भाई। तो लेकिन WWE चाहती है कि रोमन रेंस टैग टीम मैचेस में ही लड़ें, तो फिर वही हो रहा है। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि क्लैश इन पेरिस में रोमन रेंस किसी मल्टी पर्सन मैच में ऐड हो सकते हैं। देखो, पहला जो ऑप्शन है WWE के पास में वो होगा एक 6 मैन टैग टीम मैच, सीएम पंक, रोमन रेंस एंड एले नाइट वर्सेस द विजन, सेथ रॉलिंस, ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉनसन रीड। पहला मैच ये हो सकता है। दूसरा मैच WWE ये करवा सकती है कि एक फेटल 4-वे मैच करवा दे, रोमन रेंस, सीएम पंक, एले नाइट एंड सेथ रॉलिंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच होगा तो काफ़ी मज़ा आएगा, लेकिन 6 पर्सन टैग टीम मैच WWE करवा सकती है। रोमन रेंस को ऐसे ही मैचेस में WWE डाल रही है काफ़ी समय से, लेकिन हम तो सिंगल्स मैच देखना चाह रहे थे। हम देखना चाह रहे थे रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर या फिर रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉनसन रीड, क्योंकि यही पहला कदम होगा रोमन रेंस के लिए अगर उन्हें पाना है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच सेथ रॉलिंस के खिलाफ, वो भी सिंगल्स मैच। मल्टी पर्सन मैच तो मिल सकता है रोमन को, और अगर मल्टी पर्सन मैच में रोमन रेंस जाते हैं क्लैश इन पेरिस में, फेटल 4-वे मैच लड़ते भी हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, तो वहाँ वो जीतने वाले हैं नहीं। वहाँ रोमन को हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मैच में सेथ रॉलिंस पिन कर सकते हैं एले नाइट या फिर सीएम पंक में से किसी भी एक को, और रोमन रेंस ये मैच हार जाएंगे, क्योंकि फेटल 4-वे मैच में पिन किसी की भी हो, लेकिन हारते तो सभी बंदे हैं। तो इस तरह से दोस्तों रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस का मैच WWE एक बड़े PLE के लिए बचा कर रख रही है।
चाहिए, और वो प्रीमियम लाइव इवेंट हो सकते हैं रॉयल रंबल या फिर रसलमेनिया। रॉयल रंबल 2026 होने वाला है सऊदी अरेबिया में, जो कि एक 2 नाइट का इवेंट होने वाला है। वहीं दोस्तों रसलमेनिया 42 होने वाला है लास वेगस से। तो रसलमेनिया 42 के लिए माना जा रहा है कि रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच हो सकता है फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होगा रसलमेनिया 42 में अगर ये मैच हुआ तो। ऐसे में रोमन रेंस रसलमेनिया 42 में सेथ रॉलिंस को हरा देंगे और बन जाएंगे नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, ऐसा रिपोर्ट्स का मानना है। लेकिन क्या आप रोमन रेंस को नया वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनते हुए देखना चाहते हैं? क्या रोमन रेंस को बनना चाहिए नया वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन दोबारा से? कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि रोमन रेंस ने अपने पूरे रेसलिंग करियर में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप अब तक नहीं जीती है। ऐसे में उन्हें जीतना चाहिए इस बार ये टाइटल और रचना चाहिए इतिहास। लेकिन इस पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रेसलिंग जस्टिस को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।